Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Andeep, your mathematics mentor. Let's unfold today a new chapter which is statistics. In our previous class, that is 9th class में, we have studied about the meaning of statistics. So let's recall it. So what is a statistics? The extraction of meaningful information from the data that is called statistics. So जब भी हम किसी given data में एक meaningful information extract करें, so इसको क्या बोलते हैं हम? Statistics. And we also studied there the three measures of the central tendency of data. कौन से थे वो? Let's recall. They were mean, median and mode. So ये क्या होते हैं? Let's recall it. Mean is the average of the data. So क्या बोलते हैं हम mean को? The average of the data को क्या बोलते हैं हम? Mean. And what about median? Median means the central data. So median हमें देता है the value of the observation that lies in the middle of the given data, right? And what about mode? Mode is the most often data. इसका क्या मतलब है? ऐसा ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट हो, दैट इज जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड. एंड वी ऑल्सो स्टडीड कि कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम फॉर द अनग्रुप डेटा. लेकिन अब इस क्लास में हम ये तीनों स्टडी करेंगे, हम तीनों फाइंड आउट करेंगे इन तीनों चीजों को, लेकिन दिस टाइम विल फाइंड इट आउट फॉर द ग्रुप्ड डेटा, राइट? एंड इस मॉड्यूल में हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड आउट मीन फॉर द ग्रुप्ड डेटा, राइट? सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक. लेट्स रिकॉल कि कैसे हम फाइंड आउट करते थे मीन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा. सो हम क्या करते थे? हम ऐड करते थे ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड उसको फिर डिवाइड कर देते थे बाय द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ऑब्जर्वेशंस दी है x1, x2 एंड सो ऑन टिल xn, तो इसका मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे? सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते थे एंड उसको फिर डिवाइड करते थे बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एंड इसको हम डिनोट कैसे करते हैं मीन को? बाय x बार. So x bar का formula was x bar is equal to the sum of the observation by the total number of the observation, and we used here the Greek symbol that is called sigma, और इसका मतलब क्या था? Summation. So this was how we used to find out mean for the ungrouped data. Now let's see कि हम group data के लिए कैसे find out कर सकते हैं mean. For this let me take one example. Suppose we are given the data in this form. किस फॉर्म में दिया है? In the grouped frequency distribution table, right? अब इस केस में हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? Well, for that we have three methods. कौन कौन से? Let's see. First is direct method, then we have assumed mean method, and next we have is step deviation method. तो ये तीनों methods हम study करेंगे one by one. Let me start with the first method, which is direct method. So इस टेबल को again we'll consider. Now we want to find out mean using direct method. उसमें सबसे पहले जो step होगा that is to find out the midpoints of all these class intervals. और midpoints को हम क्या बोलते हैं? Class mark. और कैसे find out करते हैं हम class mark? Using this formula. So class mark is given by upper limit plus lower limit by 2. So इस फॉर्मूला को यूज करके विल फाइंड आउट द क्लास मार्क फॉर ऑल दीज इंटरवल्स. जैसे कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है क्लास मार्क ऑफ द फर्स्ट इंटरवल दैट इज फ्रॉम 10 to 25, तो इसका क्लास मार्क किसके इक्वल हो जाएगा? अपर लिमिट इज 25 प्लस लोअर लिमिट विच इज 10 by 2. सो दिस इज इक्वल टू 35 by 2, which is equal to 17.5. So this is the way how we can find out the class mark for all the intervals. उसके लिए आपको same formula apply करना है and you will get one column जिसमें कि हम लिखेंगे सारे के सारे class marks. So इस टेबल में क्या करेंगे? हम एक और कॉलम ऐड करेंगे और वो कॉलम होगा class marks का, जिसको हम find out करेंगे using this formula. So we get this. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी हैव एडेड वन कॉलम हेयर जिसमें हमने लिखे हैं क्लास मार्क्स सारे क्लास इंटरवल्स के, एंड इसको हमने मार्क कर दिया बाय एक्साइज, ठीक है? और यहाँ पर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज FI, और यहाँ पर यू कैन सी द टोटल ऑफ द FI इज 30. एंड हेयर आप एक और कॉलम देख रहे हो. अब इस कॉलम में हमने क्या किया है?
हमने एक्साइज को मल्टीप्लाई किया है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड उसके लिए वी हैव रिटन दिस, वी हैव मेड दिस कॉलम, ठीक है। एंड हियर इन सब का हमने क्या कर दिया, टोटल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया क्लास मार्क एंड हियर आर द क्लास मार्क ऑफ ऑल द क्लास इंटरवल्स। एंड उसके बाद हमने हर एक्साइज को मल्टीप्लाई किया विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे कि 17.5 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स अस 35। ऐसे ही 32.5 इंटू 3 इज इक्वल टू दिस। सेम वे हमने ये कॉलम कंप्लीट किया बाय मल्टीप्लाइंग ईच एक्साइज विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड हियर इज द टोटल ऑफ दिस, ठीक है। अब टू फाइंड आउट द मीन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड हम क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला, that is mean is equal to the total of this, right, by the total of the frequencies. So let's put the values. इसकी वैल्यू हमें पता है, that is equal to 1860 and the total of the frequency as you can see is 30. So this is 30 and solving this we get that this is equal to 62. So this is how we find out the mean for the group data using direct method. Now हमारे पास दो और methods हैं, let us study them. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है एक्साइज विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्साइज या एफआईज की वैल्यू बहुत बड़ी होती हैं, सो मल्टीप्लिकेशन इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग इन दैट केस। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम या तो एफआई की वैल्यूज को छोटा बना सकते हैं या फिर एक्साइज की वैल्यूज को, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसीज को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्साइज की वैल्यूज को छोटा बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। दैट इज आर द सेकेंड मेथड जिसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। सो ये वाला टेबल अगेन वील कंसिडर दिस। सो दिस इज द टेबल, राइट। अब हमने करना क्या है, एक्साइज की वैल्यू को छोटा करना है। अब कैसे छोटा करें, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये एक्साइज में से कोई एक एक्साइज को चूज कर लेंगे। अब कैसे चूज करना है, जनरली हम क्या करते हैं कि ऐसा एक्साइज जो कि मिडल में लाई करे उसको हम चूज कर लेते हैं। तो इसमें आप चूज कर सकते हो ईदर दिस और ईदर दिस, ठीक है। तो चूज करके हम उसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन और उसको डिनोट करते हैं बाय द स्मॉल लेटर ए। सो यहाँ पर अगर आई कंसिडर दिस 47.5 टू बी अज्यूम्ड मीन, तो मैं लिखूंगी दिस like this. So let A here is 47.5. A क्या है यहाँ पर, assumed mean, ठीक है। और ये हमने चूज किया है from among these x's. So this is assumed mean. So ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया इन द सेकेंड मेथड जो है assumed mean method. तो सबसे पहले हमने एक assumed mean सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब द सेकेंड स्टेप इज हम फाइंड आउट करेंगे डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्साइज, डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्साइज, और उसको हम डिनोट करते हैं बाय दिस डी आई। मतलब हमें करना क्या है कि अब हर एक्साई में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है और एक और कॉलम ऐड कर देंगे इस टेबल में विच विल बी ऑफ डी आईज। और डी आईज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर एक्साई में से हमने माइनस करना है दिस सेलेक्टेड एक्साई जिसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। तो हमारे पास एक और कॉलम ऐड हो जाएगा इस टेबल में विच इज ऑफ डेविएशन लाइक दिस, ठीक है। तो ये डेविएशन कैसे बनाया, ये कॉलम कैसे बना, हमारे पास हर एक्साई में से हमने किसको माइनस किया है, दिस अज्यूम्ड मीन को। जैसे कि पहला स्टेप देखो आप, पहला स्टेप है एक्स डी वन किसके इक्वल होगा, x1 माइनस 47.5। तो x1 यहाँ पे क्या है 17.5। तो 17.5 में से जब आपने माइनस किया the assumed mean which is equal to 47.5, so this will give us -30, ठीक है। ऐसे ही अब हमने 32.5 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 47.5, this will gives us -15. same way will complete this column, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया DI का कॉलम। अब इसमें आप एक और कॉलम देख रहे हो विच इज द प्रोडक्ट ऑफ FI विद DIs। अब हमने ये कैसे फाइंड आउट किया,
हर DI को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि -30 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 2, सो -30 इंटू 2 इज इक्वल टू -60, राइट। सेम वे -15 इंटू 3 इज इक्वल टू -45, और ऐसे ही हम ये पूरा कॉलम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसका टोटल कर दिया, द टोटल ऑफ दिस, ठीक है। एंड हेयर द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है विच इज इक्वल टू 30. नाउ टू फाइंड आउट द मीन यूजिंग दिस मैथड, दैट इज द assumed method, we'll use this formula. This is the formula how to find out mean using the assumed mean method. So इसमें करना क्या है, अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे and then we'll get out the mean, right? So A यहाँ पे क्या है, assumed mean, जिसकी वैल्यू हमने ली थी 47.5 plus the total of this which is equal to 435 by the total of frequencies जो किसके इक्वल है 30 के। So ये आ गया 30 and solving this we get that mean is equal to 62. So this is how we can find out mean using our second method which is assumed mean method. Now let's see our third method which is step deviation method. उसके लिए अगर आप ये सारे DIs को अच्छे से देखो तो what do you find out कि जितनी भी DIs हैं इन सब की जो वैल्यूज हैं दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 15, ठीक है। तो अब हम DIs की वैल्यूज को थोड़ा सा और छोटा बना सकते हैं। कैसे? अगर हम सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दे विद 15 तो हमारे पास और छोटी वैल्यूज आ जाएंगी एंड कैलकुलेशन करना और इजी हो जाएगा हमारे लिए, राइट। सो अब हम करेंगे एक और कॉलम ऐड करेंगे इन दिस टेबल एंड दैट विल बी ऑफ UIs. अब UI कैसे फाइंड आउट करेंगे? UI विल बी इक्वल टू xi माइनस a बाय h. यहाँ पर a क्या है? दैट इज द assumed mean एंड h क्या है? h इज द क्लास साइज, ठीक है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम एक और कॉलम ऐड करेंगे इन दिस टेबल एंड विच इज इक्वल टू xi माइनस 47.5 बाय 15. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ये वाला कॉलम, ठीक है। एंड एक और कॉलम आप देख रहे हो विच इज ऑफ FI/UI. दिस इज वेरी सिंपल। हमने क्या किया है यहाँ पर कि हर UI को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। जैसे 2 इंटू -2 गिव्स अस -4, then -1 into 3 gives us -3 and ऐसे ही हम ये वाला कॉलम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, राइट। एंड हेयर इज द टोटल ऑफ दिस. नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे मीन यूजिंग आवर स्टेप डेविएशन मेथड एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज गिवन बाय दिस. इसमें जस्ट पुट द वैल्यूज एंड विल गेट आवर आंसर. तो A क्या है यहाँ पर? assumed mean जो हमने लिया था 47.5. So this is equal to 47.5 plus h is the class size. Class size कितना है? 10 to 25. As you can see the class size is 15. So ये आ गया हमारे पास 15 into the total of this which is equal to 29 and by the total of the frequencies which is equal to 30. So solving this we get that mean is equal to 62. So this is our answer. सारे ही मेथड्स में आपने देखा मीन की वैल्यू हमेशा वी आर गेटिंग सेम, राइट. सो दीज आर द 3 मेथड्स विच आर यूज्ड टू फाइंड आउट द मीन फॉर द grouped data. And with this we finish our today's module. See you in the next module with some new topic. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you.